جی اب میں سٹاکس تھوڑے سے دکھاتا ہوں جو مجھے پسند ہیں۔ زیادہ تر آپ دیکھیں گے ہر بندے کی پریفرنس ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ مجھے زیادہ تر ٹیک کے سٹاکس پسند ہیں، وہ اس لیے کیونکہ مجھے ٹیک کا شوق ہے اور ٹیکنالوجی وغیرہ، اور میں اس فیلڈ میں بھی ہوں، تو مجھے وہ جلدی سمجھ آتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے اے ایس ایم ایل۔ یہ کافی اچھا سٹاک تھا، جب سے میں نے خریدا تب سے نیچے ہی جا رہا ہے، مگر اس کی پوٹینشیل مجھے پتا ہے بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ لوگ نا، اے ایس ایم ایل ایک کمپنی ہے جو چپ بناتی ہیں، چپ مینوفیکچر کرتی ہیں۔ تو اے ایس ایم ایل اگر ہم سرچ کریں تو یہ اے ایس ایم ایل دا ورلڈ سپلائر ٹو سیمی کنڈکٹر انڈسٹری، یہ ماس پروڈیوس کرتی ہے سلیکون چپس وغیرہ، جو اسمارٹ فون کمپیوٹر ہر جگہ پہ لگتی ہیں۔ تو ساری جو بڑی کمپنیز ہیں، سیمسنگ وغیرہ، یہ لوگ ان سے سپلائی لیتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی کمپنی ہے، اور دنیا میں کچھ ہی ہیں یہ۔ تو اسی لیے میں نے اس پہ تھوڑا سی بیٹ لگائی، مگر غلط ٹائم پہ میں نے انویسٹ کیا، میرے خیال سے ادھر انویسٹ کیا تھا، اب تب سے نیچے جا رہی ہے یہ۔ مگر انشاءاللہ مجھے ہوپ ہے کہ یہ، اگر میں اس کا 6 منتھ گراف دیکھوں تو یہ اوپر ہی جا رہی ہے، تو میں نے غلط ٹائم یہ والا لیا۔ کوئی بات نہیں، پھر بھی آج آج کا اگر خریدنا ہے تو آج بھی اچھا موقع ہے، کیونکہ یہ نیچے تو نہیں جا رہی، اس سے اب اوپر ہی جائے گی، تھوڑا سا بریک لے کے پھر اوپر انشاءاللہ جائے گی۔ تو اس طرح یہ اس لیے مجھے پسند آیا، کیونکہ یہ دیکھیں نا، 6 مہینے کا اگر گراف دیکھیں تو اوپر ہی جا رہا ہے، ایک سال کا دیکھیں تو اوپر ہی جا رہا ہے۔ بس یہ میں نے تھوڑی غلطی کر لی، جلد بازی کر لی، غلط ٹائم پہ خرید لیا، غلط صحیح ٹائم آج تھا۔ تو یہ دیکھیں، 1 سال کا دیکھ رہے ہیں پھر بھی اوپر جا رہے ہیں، کتنا فرق آ جاتا ہے ایک سال میں 300۔ یہ کیلکولیشن میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں، اس میں کہ 1 سال کی اگر ایئر 370 ہے اور 837 ہے، 837 مائنس 370، یہ آپ کا پروفٹ ہوگا سال کا، اگر آپ نے سال پہلے خریدا ہوتا، ڈیوائڈڈ بائی اوریجنل اماؤنٹ 370، تو اس کو کہتے ہیں پروفٹ۔ تو یہ 1.26 ہے، تو یہ ملٹیپلائڈ بائی 100 کرتے ہیں پرسنٹیج نکالنے کے لیے، تو اس کو ملٹیپلائڈ بائی 100 اگر کریں گے تو 126% پروفٹ ہے۔ تو مگر اس میں پلس پلس 1 کریں گے، کیونکہ یہ صرف پروفٹ ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح کریں، اب کی پرائس ڈیوائڈڈ بائی اولڈ پرائس ملٹیپلائڈ بائی 100، تو یہ 226% بنتی ہے اس کی، جو یہاں سے یہاں تک ہے۔ تو مطلب کہ اگر آپ نے 1 لاکھ لگایا ہوتا تو وہ 1 لاکھ جو ہے، 1 لاکھ نہیں، 1 لاکھ، یہ تو 10,000 ہے، یہ 1 لاکھ ہے۔ 1 لاکھ لگایا ہوتا تو اتنا بن جاتا صبر، یہ 100 نکالنا ہے اس میں سے، تو وہ 2 لاکھ کے قریب، 2.26، 2 لاکھ کے قریب بن جاتا، ڈبل ہو جاتے پیسے۔ تو اس طرح سے حساب کتاب ہوتا ہے وہ۔ اور اگر آپ اور دیکھتے ہیں، یہ جو میرے واچ لسٹ میں ایڈ ہے یاہو فائنینس میں، وہ یہ ہے، بی ٹی سی بھی ہے، بٹ کوائن پہ بھی میں نظر رکھتا ہوں۔ یہ تو بہت زیادہ فلکچویٹ کرتا ہے، اور اس کا کوئی ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ صبح 4 بجے سے 5 بجے تک، کچھ اس طرح کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ پوری رات 24 آور آن رہتا ہے۔ کوئی بری خبر آتی ہے دنیا میں تو یہ اوپر چلا جاتا ہے، کوئی اچھی خبر آتی ہے اسٹاک سے اس کے بارے میں تو یہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو یہ اسٹاک کا تقریباً کمپلیمنٹ ہی چل رہا ہے، کمپلیمنٹ مطلب الٹ چل رہا ہے، اسٹاک اوپر جاتے ہیں تو یہ نیچے جاتا ہے، یہ نیچے جاتا ہے تو اسٹاک اوپر جاتا ہے، عموماً اس طرح چلتا ہے، مگر بعض دفعہ کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس پہ بھی نظر رکھتا ہوں میں، بٹ کوائن پہ بھی۔ تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال ستمبر میں 10,000 کا تھا، آج 43 کا ہے، تو یہ اس میں تو 400 گنا پروفٹ ہے، مطلب 4 گنا ہو جائے گا۔ تو یہ آر وائی ہے، یہ میرے خیال سے رائل بینک آف کینیڈا ہے، اس پہ بھی نظر رکھتا ہوں، اس پہ کبھی انویسٹ نہیں کیا، مگر بس نظر رکھنی ہوتی ہے۔ یہ میرا بینک ہے، رائل بینک آف کینیڈا،
جس میں میرا اپنا اکاؤنٹ ہے، تو اس لیے اس پہ بھی نظر رکھتا ہوں میں. اور ہے ٹی ڈی ہے. ٹی ڈی بھی ایک بینک ہے، ٹورنٹو ڈومینین بینک. یہ بھی یہاں کا مشہور بینک ہے. اس میں یہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج والا ہے. اس میں آپ کو دونوں مل جائیں گے. ڈاٹ ٹی او بھی مل جائے گا جو ٹورنٹو اسٹاک ایکسچینج کا ہوگا. تو اگر آپ نے صرف کینیڈین میں ڈیل کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. مگر ایک دفعہ کیش یو ایس میں کنورٹ ہو گیا تو یو ایس میں ہی رہنے دیں اور یو ایس کے سارے اسٹاکس خریدیں. تو اس کا نیو یارک اسٹاک ایکسچینج والا اسٹاک خریدیں. یہ دیکھیں ابھی پچھلے 6 مہینے سے مئی سے نیچے جا رہا ہے، مگر پھر اوپر ابھی آئے گا کیونکہ کووڈ کی وجہ سے نیچے گئے تھے یہ سارے اسٹاک مارچ میں. ہاں، مارچ سے اوپر گیا ہے پھر مئی میں دوبارہ سے نیچے. تو یہ اس میں بھی کبھی انویسٹ نہیں کیا، بس ایسے ہی دیکھنے کے لیے. یہ کینیڈین یو ایس ڈالر کا کنورژن ریٹ کہ وہ بھی اس پہ بھی یہ فورن ایکسچینج کا ایل ایس پی ڈی یا لائٹ سپیڈ آپ کو پتہ ہے، اس سے ہم نے پیسے بنائے تھے. تو یہ بھی اچھا ایک سٹاک ہے، کافی گروتھ ہے اس کی ایک سال میں کا اگر دیکھے تو کافی اوپر جا رہا ہے یہ تو ڈبل ٹرپل تقریباً 4 گنا ہو گیا ہے ایک سال میں. تو فائیور ہے. فائیور لائٹ سپیڈ یہ وہ کمپنی ہے جو پرووائڈ کرتی ہے کامرس پلیٹ فارم. شاپنگ کے لیے جب جاتے ہیں آپ تو ادھر ان کی مشینیں لگی ہوتی ہیں ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ کرنے کے لیے لائٹ سپیڈ کی. اور یہ سافٹ ویئر بھی پرووائڈ کرتے ہیں اس کے لیے، پوائنٹ آف سیل ٹرمینل کے لیے، پی او ایس جس کو کہتے ہیں، کیش رجسٹر وغیرہ پہ. یہ اس کا سافٹ ویئر بھی پرووائڈ کرتے ہیں. فائیور ایک اچھی کمپنی ہے. یہ اس کی ویب سائٹ ہے فائیور. یہاں پہ پاکستان میں فائیور بہت چلتی ہے، آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں. یہ فری لینسنگ ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ اپنی سکلز وغیرہ بیچ سکتے ہیں، دنیا میں کہیں سے بھی ہائر کی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ہائر بھی کروا سکتے ہیں. تو لوگو ڈیزائن، ویب سائٹ، وائس اوور، یہ ساری چیزیں، سوشل میڈیا، کوئی بھی کام آپ نے کروانا ہے یہاں پہ سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں فری لانسرز، ان کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ویب سائٹ ہے. تو اس کی مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ کافی گرو ہو رہی ہے، اس لیے اس میں انویسٹ کیا تھا میں نے. بنائے تھے اچھے خاصے پیسے یہاں سے ادھر کہیں پہ میں نے بنائے تھے. تو یہ بھی ایک اچھی کمپنی ہے فائیور. تو دوسرا یہ اے ٹی وی آئی ہے. یہ گیمنگ کمپنی ہے، ایکٹیویژن بلیزرڈ. اس کی کافی اچھی گیمز ہوتی ہیں جو مجھے پسند بھی ہیں. تو وہ یہ کمپنی بہت بڑی ہے. بیسکلی میرے خیال سے ان کا کوئی آج کل اسکینڈل چل رہا ہے تو اسی لیے یہ نیچے گئی ہوئی ہے. بلیزرڈ ان کا نام ہے. بلیزرڈ ڈاٹ کام پہ شاید جائیں گے تو ساری ان کی گیمز وغیرہ پتہ لگیں گی. ان کی بڑی اچھی اچھی گیمز ہوتی ہیں. ورلڈ آف وار کرافٹ ان کی ہے جو بڑی مشہور گیم ہے. ڈیابلو اور اسٹار کرافٹ جو میں کھیلتا ہوں وہ بھی ان کی گیم ہے. تو یہ کافی اچھی. یہ ٹورنامنٹ بھی کرواتے ہوتے ہیں مگر آج کل کووڈ کی وجہ سے ٹورنامنٹ نہیں کروا رہے. میرے خیال سے اگلے سال کروائیں گے. تو یہ اچھی پرائز پہ مل رہا ہے آج کل. اگر آپ نے سال کے لیے کچھ رکھنا ہے یا 6 مہینے کے لیے رکھنا ہے تو یہ اچھا ہے. آج کل کافی کافی نیچے گیا ہوا ہے اور یہ پرائز ٹو ارننگ ریشو بھی بہت اچھی ہے. یہ پرائز ٹو ارننگ پی ای ریشو جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اسٹاک کتنا مہنگا ہے اپنی ارننگ کے حساب سے. تو 20s میں ہے تو بہت ہی زبردست ہے. عموماً یہ 100 سے اوپر ہی ہوتا ہے. تو مطلب کہ پرائز اس کی بہت ریزنیبل ہے. جب ٹورنامنٹ وغیرہ شروع ہوں گے اور ان کی نئی گیمیں آئیں گی پھر اوپر جائے گا یہ. تو یہ بہت اچھی پرائز ہے. یہ اگر کووڈ سے پہلے کا دیکھے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے مارکیٹ نیچے گئی ہوئی ہے. کووڈ کے پہلے کی دیکھے، ہاں 2018 تک کی پرائز پہ آ گیا یہ، دوبارہ 2 سال پہلے والی پرائز پہ آ گیا. تو پھر گیمز ریلیز ہوں گے میرے خیال سے. یہ اس طرح کا سائیکل چلتا رہتا ہے ان کا. گیمز ریلیز ہوتی ہیں پھر اوپر جاتا ہے پھر اس طرح. تو یہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کمپنی کیا ہے اور کیا کرتی ہے. اب گیمز کے سائیکل کے حساب سے یہ چلتے ہیں. اور دوسری اس بات یہ ہے کہ ان کے ٹورنامنٹس بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. لاکھوں ملینز آف ڈالرز جیتے جاتے ہیں وہاں پہ. تو ایچ ڈی ہے ہوم ڈیپو.
ہوم ڈیپو کنپنی یہاں پہ بہت بڑے ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں ان کے، ان میں لکڑی گھر کا سارا پورا گھر بیسیکلی بنا سکتے ہیں آپ ان سے، ساری چیزیں جو لے کے نا، لکڑی ملتی ہے یہاں پہ شیٹس، سیمنٹ، بجری، گھر کی لائٹیں، گراج، سارا سامان بیسکلی آپ اس دکان میں جا کے آپ ایسا سامان خرید سکتے ہیں کہ آپ کل کو آ کے گھر بنا سکتے ہیں پورا، ایک ایک چیز ان کے پاس ہوتی ہے، اور یہ سب سے مشہور کمپنی ہے، اور بہت بڑے بڑے ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں ان کے، آئے دن میرا یہاں پہ چکر لگتا رہتا ہے، مجھے پتا ہے یہ کمپنی کہیں جانے نہیں والی، تو یہ بہت اچھی کمپنی ہے آج کل اس کی، دیکھیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، اب میں اس کے گراف دیکھ رہا ہوں نا، یہ دیکھیں آپ، یہ یہاں سے اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اوپر اوپر ہی ہے ابھی تک، تو یہ ابھی برا ٹائم ہے اس کو خریدنے کے لیے، کسی دن اس کا گندا دن آئے گا، جب گندا دن آئے گا اس کا تب خریدنا ہے، ابھی نہیں، ابھی یہ بہت پیک پہ ہے، اب خریدیں گے تو نیچے ہی جائے گا یہ، کبھی بھی آپٹمسٹک نہیں ہوتے، آپٹمسٹک لوگوں سے خریدتے ہیں شیئر، اور پیسیمسٹ لوگوں کو بیچتے ہیں، آپٹمسٹ ہوتا ہے جو کہتا ہے یار یہ اوپر ہی جائے گا، یہ اوپر ہی جائے گا، اس بندے سے خریدتے ہیں، اس بندے کو بیچتے ہیں، ہاں، آپٹمسٹ کو بیچتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے اوپر ہی جائے گا، تو آپ کہتے ہو کہ یہ لو یار میرے لے لو، تم اوپر لے کے جانا ہے اس کو، میں تو نہیں لے کے جا رہا، تو پیسیمسٹ سے خریدتے ہیں، وہ کہتا ہے یار یہ نیچے جائے گا، وہ بیچنا چاہ رہا ہوگا، آپ اسے لے لیں گے، آپ کہیں گے نہیں یہ اب نیچے اور نہیں جائے گا، اب یہ اوپر جائے گا، تو یہ ٹائم تھا خریدنے کا، ایک یہ ٹائم تھا، ایک یہ ٹائم تھا خریدنے کا، نیچے جب جاتا ہے، ایک یہ ٹائم تھا، مگر یہ آپ دیکھیں، یہ ادھر بہت بڑا ٹائم تھا خریدنے کے لیے، اب نیچے گیا تھوڑا سا، مگر پھر اس کو تھوڑا اور میرے خیال سے نیچے آنے دیں پھر یہ، مگر نظر رکھیں اس پہ، بعض دفعہ آپ اس کو واچ لسٹ میں ہے تو یہ آپ کو اگر زیادہ گرتا ہے اوپر جاتا ہے تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا یاہو فائنانس کی طرف سے کہ آج یہ بہت گرا ہے، یا اس کی والیوم بہت زیادہ تھی، والیوم زیادہ، یہ نیچے جو باہر آ رہی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس دن بہت زیادہ خرید فروخت ہوئی تھی، یہ اب میں والیوم دیکھ رہا ہوں تو گرین کلر کا جو لکھا ہوا آ رہا ہے 1.47 ملین، مطلب کہ 1.47 ملین شیئرز خریدے یا فروخت کیے گئے ہیں مارکیٹ میں، تو سپتمبر 17 کو 1.47 ملین شیئرز ادھر سے ادھر گئے ہیں، تو یہ روز کے، یہ جب جب یہ آتی ہے پیک، تب تب آپ دیکھیں گے کہ دوسری بھی پیک آتی ہے اوپر جانے والی، تو جب لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا کسی شیئر کے لیے، تب آپ، اگر آپ نے ہولڈ کیا ہوا نا وہ شیئر بیچتے ہیں، کیونکہ وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے بیچنے کے لیے، کیونکہ بہت لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، نیوز آئی ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کہتے ہو ٹھیک ہے بھائی آج میں بیچ دیتا ہوں، کل کو نیچے جائے گا میں دوبارہ خرید لوں گا، اب وہ انٹیلیجنٹ بندہ نہیں ہوگا جس نے اگر یہاں پہ خریدا تھا، اور یہاں پہ جب وہ لوگ ایکسائٹیڈ تھے وہ اور ایکسائٹیڈ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں بھائی، لوگ کہہ رہے ہیں اوپر جائے گا اوپر جائے گا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار آپ اوپر لے کے جاؤ، ان کو بیچ دیا اس نے، پھر اس کے بعد نیچے جانے کا ویٹ کیا، جب یہ ادھر نیچے گیا پھر اس نے خرید لیا، پھر اب اوپر چلا گیا، تو اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ لائٹ سپیڈ ڈاٹ ٹی او یہ ٹورانٹو والا ہے، اور یہ میں نے لائٹ سپیڈ وہی والا جو پہلے بتایا تھا وہ امریکن والا ہے، اس میں پرائس بھی دیکھ لیں 150 ہے، یہ 119 ہے۔ کورسیرا یہ کمپنی تو ٹھیک ہی ہے، مگر اس کا سٹاک کافی والیٹائل ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا اس کا سٹاک، ایک دو دفعہ کیا ہے اس کے سٹاک پہ۔ کورسیرا ایک کمپنی ہے جس پہ آپ کورس کر سکتے ہیں، کسی بھی اس کے پروگرامنگ کا یا کوئی بھی اسکل سیکھنے کے لیے، کورسرا ڈاٹ آرگنائزیشن یہ ہے اس کا ویب سائٹ، یہ ڈگری وغیرہ بھی ڈگری تو نہیں، وہ سرٹیفکیٹ کمپلیشن سرٹیفکیٹ وغیرہ دے دیتے ہیں، اور گوگل کا آئی ٹی سپورٹ وغیرہ آپ پروفیشنلی سرٹیفائی ہو سکتے ہیں یہاں پہ، اچھی ویب سائٹ ہے، لوگ میں نے سنا ہے کافی یوز کرتے ہیں، میں نے خود 2 3 دفعہ شاید یوز کی ہے میں نے یہ ویب سائٹ، تو اسی سے پتہ لگتا ہے کہ اچھا کتنی بڑی کمپنی ہے اس یوز سے، اور کہیں پہ دیکھا، اب ہم تو ہمارے لیے آسان ہے، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، آ، ہم تو دیکھتے رہتے ہیں کون سی کمپنی چل رہی ہے، اب میں کدھر شاپنگ کرنے گیا تو ادھر میں نے مشینیں دیکھی، اسکوائر کی یا پھر لائٹ سپیڈ کی مشینیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو مجھے سمجھ آ جاتا ہے اچھا یہ یوز کر رہے ہیں لوگ، یا پھر ہم کہیں مارکیٹ میں گئے اسٹیپلز وغیرہ میں، وہ اسٹیپلز بھی ایک دکان ہے یہاں پہ، وہاں پہ گئے تو وہاں پہ پڑی ہوئی ملی اسکوائر کی مشینز، تو مجھے سمجھ آیا کہ ہاں یہاں بک رہی ہیں، اسی لیے تو ادھر پڑی ہوئی ہیں، تو
वो माइंड में आती रहती है, अच्छा ये भी कंपनी है जिसका स्टॉक मैंने देखा था। तो कोर्सेरा हो गया। उबर, उबर का तो आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है। उबर वो तो फूड डिलीवरी भी करती हैं, और वो भी राइड शेयरिंग तो है ही। इसका स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है आजकल, ऊपर जा रहा है। देखिए अभी आप ऊपर जा रहा है, वो तो अच्छी बात है। ये 6 मंथ का देखिए, नीचे जा रहा था फिर ऊपर गया है। अब नहीं खरीदूंगा मैं, क्योंकि अब ऊपर जा रहा है। जब नीचे जाएगा, जब इसका बुरा दिन आएगा फिर खरीदूंगा। बुरे दिन पे खरीदते हैं। तो वो कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ कि ये इसको ना, चेंज परसेंटेज चेंज को क्लिक करूंगा ना तो वो सॉर्ट हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा नीचे कौन सी कंपनी गई है और सबसे ज़्यादा ऊपर कौन सी कंपनी गई है। अब मैं नीचे जाऊंगा ना तो सबसे ऊपर ये वाली कंपनी गई है, फ्यूज डॉट वी, जिसे 7% प्रॉफिट हुआ है। सबसे ज़्यादा नीचे ये वाली कंपनी की, ये पहली वाली फाइवर, जो 4.03% लॉस हुआ उसका। तो इस तरह देख सकते हैं। अब हमने ये सारा कवर कर लिया कोर्सेरा। CRCT ये बहुत अच्छी कंपनी है। अब ये तो, इसको मैं थोड़ा समझाऊं कि क्रिकेट, क्रिकेट नाम है इसका, क्रिकेट, मगर क्रिकेट, क्रिकेट बुलाते हैं इसको। ये CRI, सर्किट से आया, और कटिंग से आया। तो ये कंपनी बहुत अच्छी मशीन्स बनाती है घर में यूज़ के लिए। ये इस तरह की मशीन होती है, मेरे पास भी है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, स्टिकर्स वगैरह या फिर इस तरह के फ्लावर्स, पेपर कट कर सकते हैं। कपड़ा भी काट देती है ये, और पेन इसमें डाल के ना, पेन भी प्रिंट, जो कुछ आप डिज़ाइन बनाएंगे वो पेन मशीन से, मशीन पेन से लिख देगी आपको किसी ये पेन यूज़ हो रहा है। एनवलप के ऊपर उस तरह डिज़ाइन बना देगी, बिल्कुल जो आपने डिज़ाइन किया है उसमें कंप्यूटर में। और भी काफ़ी मशीनें हैं, ये मग के ऊपर भी प्रिंट कर देती है, ये शर्ट्स के ऊपर भी चीज़ें प्रिंट कर देती है ये। और काफ़ी चीज़ें ये लोग बेचते हैं, और इनका काफ़ी स्टफ़ जो है, मैंने वॉलमार्ट वगैरह, वॉलमार्ट भी बहुत बड़ी दुकान है, वहाँ पे भी मैंने देखा है इनकी मशीनें। तो इनकी 3rd जनरेशन की मशीनें आ गई हैं इनकी, मेरे पास 2nd जनरेशन है, 3rd जनरेशन भी आ गई हैं, और मुझे पता है ये बहुत चलती हैं, बहुत लोग खरीदते हैं। इन पे, इस मशीनों पे बिजनेसेस करते हैं लोग, ये चीज़ें छोटी मोटी बना बनू के बेचते हैं आगे। तो मुझे इसका बहुत बिलीव है कि ये कंपनी और अच्छा कर सकती है, बहुत अपॉर्चुनिटी है इसमें। ये अच्छा स्टॉक जा रहा है इनका। किसी दिन बुरा दिन आएगा तो फिर खरीदूंगा, अभी तो ऊपर जा रहा, बनाए हैं इस पे काफ़ी पैसे मैंने। एफ, फोर्ड, फोर्ड मोटर कार कंपनी आपने सुनी होगी। फोर्ड मोटर कंपनी ये गाड़ियाँ बनाती हैं। इसका स्टॉक सस्ता है काफ़ी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अच्छी है, मगर बाज़ दफ़ा इसकी जो वॉल्यूम है, ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी कम होती है। और दूसरी बात यह है कि इसका स्टॉक ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता। अच्छा ये भी एक ट्रेंड है, देखें आपके दिन के शुरू में हमेशा ऊपर जाता है। अगर नीचे जाना होता है तो दिन के शुरू में ही जाता है, फिर बाकी दिन बस स्टेबली, रिलेटिवली स्टेबल ही रहता है। तो ये भी एक अच्छा ट्रेंड है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग भी दिन के शुरू में होती है। देखें बार नीचे कितनी लंबी है, ये वाली भी बार कितनी लंबी है, ये वाली भी। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग भी शुरू के दिन, दिन के शुरू में होती है। तो ये भी इस तरह के ट्रेंड देखने चाहिए। फिर फ्यूज़ है, फ्यूज़ जो है मेरे ख्याल से कोबाल्ट माइनिंग कंपनी है। इसके बारे में इतना कुछ नहीं पता मुझे, मगर इसका ये पता है कि इसके जो स्टॉक्स हैं वो बहुत कम देखिए कुछ घंटों में तो ज़ीरो वॉल्यूम है, कुछ खरीद फरोख्त नहीं हुई। इसमें पैसे फंसाना फजूल है। इस तरह के स्टॉक से दूर रहें जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है, कुछ कोई खरीदने फरोख्त करने वाला ही बंदा ही कोई नहीं। तो फिर आप इसमें क्यों लगाएंगे, और ऊपर से इतने सस्ता स्टॉक है। आप कहेंगे बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा खरीद सकूंगा मैं। ज़्यादा खरीदने का फ़ायदा नहीं है, जब कोई बेचना, खरीद फरोख्त करने के लिए फिर आपको लॉस में बेचना पड़ेगा। टेम्परेली आपको लगेगा कि बहुत मुनाफा हो गया, क्योंकि वो लास्ट ट्रेड प्राइस होती है ना, कि पिछला किसने खरीदा। मगर जब आप बेचने जाएंगे मार्केट में तो खरीदने वाला ही कोई नहीं होगा, तो फिर आपसे, तो आप उसकी प्राइस और कम करेंगे और कम करेंगे, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लोगों को ग्राहक बुलाने के लिए। तो वो फिर लॉस पे ही बिकेगा आपका। तो इसमें से तो इस तरह के स्टॉक से, इनको कहते हैं पेनी स्टॉक्स, के जो
एक पेनी का होता है। पेनी एक होता है डॉलर, डॉलर से कम पेनी होती है, फिर 100 सेंट होते हैं या पेनीज होते हैं। तो उनको पेनी कहते हैं, जो $1 से कम के स्टॉक्स होते हैं ना, $1 से कम का। इनको पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए, इनकी फ्लक्चुएशन बहुत होती है। फाइवर के बारे में बोला नहीं, ग्रीन हिल ये जो है, ग्रीन हिल एंड को, ये कंपनी के बारे में हम सर्च कर लेते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, फाइनेंशियल एडवाइसेस देते हैं ये। तो इसका स्टॉक मुझे एक टाइम पे अच्छा लगा था, वो मैंने अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया, काफ़ी पैसे भी बनाए थे इससे। तो ये भी अच्छा कर रहे हैं अभी, मगर पीछे बुरा किया। जीएम, जीएम के बारे में आपने बहुत सुना होगा, एक जनरल मोटर कंपनी। ये इनके फैन भी आते होते हैं, और इनके इंजन, टरबाइन इंजन बनते हैं। और ये जहाज़ के सारे जो इंजन हैं, दो कंपनीज बनाती हैं, एक जीएम बनाता है और एक रोल्स रॉयस बनाती है। रोल्स रॉयस की तो आपने गाड़ियों के बारे में सुना होगा, वो एयरक्राफ्ट के इंजन भी बनाते हैं। तो एक ये जीएम कंपनी है, ये बड़े सालों से है, बहुत पुरानी कंपनी है ये। तो नहीं, सॉरी, ये जीएम है, जनरल मोटर्स है। जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है वो इंजन्स। जनरल मोटर्स जो है ये मेरे ख्याल से गाड़ियाँ बनाती है। इनकी काफ़ी गाड़ियों की फर्म्स हैं जनरल मोटर्स। इनके अंडर मेरे ख्याल से कोई कंपनीज आती हैं। हाँ, जीएम की ब्रांड्स हैं इसके अंडर, कौन कौन सी, हाँ, जीएमसी, शेवरले, कैडिलैक, ये सारी गाड़ियों की कंपनीज हैं, ये इसके अंडर आती हैं। तो ये गाड़ियाँ बनाते हैं, इन्होंने खरीदी हुई हैं वो नीचे वाली कंपनीज। तो उस हिसाब से ये भी अच्छा है, और इसका डिविडेंड पी रेशो भी देखिए कितना अच्छा है। डिविडेंड नहीं लिखा हुआ, डिविडेंड नहीं होगा इसका। होम डिपो के बारे में बात की थी मैंने। ये इंटेल कॉर्पोरेशन, आपको इंटेल का तो पता होगा, जो सीपीयू बनाती है। आजकल इनकी चिप्स छोड़ के एप्पल ने इनकी चिप्स छोड़ दी हैं, अपनी चिप्स बना रहे हैं। तो इसीलिए इनका स्टॉक काफ़ी गिरा था जब नई न्यूज़ आई थी। ये मेरे ख्याल से इधर ही आई थी। तो इनका काफ़ी स्टॉक गिरा था उस वजह से। तो मगर बात यह है कि बहुत बड़ी कंपनी है एप्पल ने, अगर इनकी चिप्स नहीं यूज़ की तो फिर भी कंप्यूटर्स में यूज़ तो होती है ना। मगर मुझे लगता है कि चिप के बिजनेस से इनको बाहर आ जाना चाहिए। तो इस वजह से अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करता मैं, मगर कभी ये न्यूज़ आ जाती है तो देख लेता हूँ इसको। एल एस लाइट स्पीड के बारे में बात की, एल एस पी डी डॉट टी ओ वी के बारे में बात की, पीछे कुछ रह तो नहीं गया? हाँ, हाँ, अच्छे अच्छे कम स्टॉक्स रह गए। एप्पल, एप्पल है, आप के बारे में पता है आपको? अमेरिकन एयरलाइंस है, ये एयरलाइन के स्टॉक्स आज ऊपर गए हुए हैं। एयरलाइन के स्टॉक्स, क्योंकि ट्रैवल वापस आ रहे, लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हम कोविड चला गया, कोविड की चला तो नहीं गया, मगर वैक्सीन अगर लगवाई हुई है तो कोविड ट्रैवलिंग आसान है। तो इसलिए ये स्टॉक्स एयरलाइन के अच्छे हैं। एएमडी का स्टॉक है, एएमडी भी कंप्यूटर चिप्स बनाती है इंटेल की तरह है, मगर एएमडी जो है मेरे ख्याल से इनकी पोटेंशियल अच्छी है, क्योंकि ये जीपीयूज बनाते हैं। इंटेल जीपीयूज में अच्छा नहीं है। जीपीयूज आजकल क्रिप्टो माइनिंग में बहुत यूज़ हो रही है, इसलिए इसकी प्राइस बहुत है। अगर आप 5 साल का देखेंगे तो ये देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये जब से क्रिप्टो करेंसी का रुझान शुरू हुआ है 2018 में, उस वक़्त से जो है ये बहुत चढ़ाव की, क्योंकि जीपीयूज बनाते हैं, और इनके सीपीयूज भी अब आने शुरू हो गए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। तो लैपटॉप में अब इनके इंटेल के मुकाबले पे आ गई है। पहले ये बुरी समझी जाती थी, इंटेल इनके जो सीपीयूज हैं वो इंटेल के मुकाबले में बुरे थे, मगर अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई, काफ़ी अच्छे हैं। ये आर्को ये आर्को ये होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी जो रियल एस्टेट वगैरह की चीज़ें होल्ड करती है और किराए शराए लेती है उनसे। ये मैंने कभी किसी टाइम पे इन्वेस्ट किया था, इसलिए वॉच लिस्ट में है।
एस एम एल, एक्टिविजन, ब्लैकबेरी, ये सारे डिस्कस है। बी आर के भी, ये तो वैसे ही देखने के लिए मैंने रखा हुआ है, वैसे इसको कभी नहीं खरीदा। बी आर के पी डैश पी, ये वाला देख सकते हैं हम। ये बर्कशायर हैथवे, जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, स्टॉक इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट, उसकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उसका बी स्टॉक है ये। ए स्टॉक $3 लाख का है। बी स्टॉक जो है वो किसी खरीद फरोख्त में आता है, मगर फिर भी जो है इसका इतनी ग्रोथ नहीं है इसकी जितनी ए स्टॉक की है। ये 5 साल का अगर आप ग्रोथ देखें तो कह सकते हैं 100%, हाँ 100% ग्रोथ तो है 5 साल में। मगर वो फिर डिवाइड बाय 5 करें तो 20% बनता है, जो कि ओके है, इतना बुरा नहीं है। मगर इसका जो दूसरा शेयर है, बी आर के ए शेयर, ये वाला, ये देखिए अब तो 4 लाख का है। ये इसकी ग्रोथ देखें आप। अगर ये मैक्सिमम करूँ मैं, ये तो बहुत पुराना है, ये किसी टाइम पे 1,000 का होता था, अब 4 लाख का है, 10-20 साल पहले। इसकी बहुत ग्रोथ हुई है, ये बहुत पुराना स्टॉक है, ये जब से कंपनी उसने शुरू की है वॉरेन बफे ने, वो तो बहुत पुराना इन्वेस्टर है। अब तो बूढ़ा हो गया है, बिल गेट्स का दोस्त है वो, मल्टी बिलियनर है वो। तो उसकी कंपनी का ये स्टॉक है। मैं ऐसे ही देखने के लिए कभी इन्वेस्ट तो नहीं किया, बस वैसे ही देखने के लिए। BTB.UN.TO, ये टोरंटो का स्टॉक है। इस BTB जो है REIT है। REIT का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये लोग बिल्डिंग्स खरीदते हैं, फिर उनका जो किराया आता है उसको शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो इसमें जो डिविडेंड है वो बहुत अच्छा होता है, 7.3% डिविडेंड होता है। मगर इसका एक एडवांटेज, ये डिविडेंड मिलता है, महीने के महीने आपको पैसे मिलते हैं। 7.3%, अगर फर्ज करें आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, 7.3% आपको मिलेगा। 0.73, 1 लाख का 0.7 नहीं, 0.073, 7,300 साल का मिलेगा। तो अगर इसको सेवन इस तरह कैलकुलेट करते हैं, 7.3 ऑफ, अगर आपने लाख रुपया लगाया है इस पे और 7.3% मिल रहा है, तो पर मंथ देते हैं ये REIT, पर मंथ कितना देंगे, 600 रुपया देंगे पर मंथ, अगर आपने लाख लाख रुपया लगाया। अगर आपने $1,00,000 लगाया है तो $600 मिलेगा महीने का, जो कि ठीक है मगर इतना अच्छा नहीं है। इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मगर दूसरी बात ये पर मंथ तो दे देते हैं आपको ये, मगर ये देखें ना कि इसकी प्राइस नहीं कितनी फ्लक्चुएट नहीं करती, मतलब 4 के अराउंड ही रहती है। ये पिछले 5 सालों में देख लेना, 4 के अराउंड ही है। तो इसकी प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाती, मगर इसका जो पर मंथ जो मुनाफा है वो आता रहता है, मगर वो भी कम है। अगर इस इन पैसों को, लाख अगर डॉलर या लाख रुपए इन पैसों को कुछ और करेंगे तो वो ज़्यादा बनेंगे, थोड़ा सा पर रख के। बिटकॉइन, कैनेडियन डॉलर, ये कुछ बात कर ली हमने इसके बारे में। ग्रीन हिल, GM, HT, होम डिपो, इंटेल, हाई स्पीड, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स तो आपको पता है क्या है, किस तरह है। इस पे भी काफ़ी दफ़ा लगाया हुआ है मैंने। वो आप कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली हराम नहीं है, तो काफ़ी हद तक हराम ही है। मगर कभी कभी देखता हूँ मैं, अगर प्राइस अच्छी चल रही हो तो ले लेता हूँ फिर थोड़ी देर के लिए। नोकिया, नोकिया कंपनी तकरीबन मर चुकी हुई है, कोई इनके फ़ोन नहीं लेता। अब तो $5 का स्टॉक मिल रहा है। अगर हम 5 साल का ट्रेंड देखेंगे तो तकरीबन 5 साल पहले से, कब से मरी हुई है ये, कब, 2007। बस समझ लें जब से आईफोन आया है ना, पहला आईफोन 2008 में आया था शायद, हाँ, उस वक्त से बस नीचे ही है, डाउन हिल ही है, और फिर बस ये स्टेबल ही है, और ये डिविडेंड भी नहीं देती। तो ये तो फिजूल ही है, बस वैसे ही देखने के लिए। एनवीडिया एक अनदर कंपनी है, इनकी बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी कि ये आर्म को ख़रीद रहे हैं। कंपनी ये जीपीयू की है, जीपीयू बनाती है जो क्रिप्टो करेंसी माइन कर सकते हैं, इसलिए क्रिप्टो करेंसी की वजह से इनका स्टॉक भी काफ़ी ऊपर गया था। जिस तरह AMD का मैं बता रहा हूँ, पिछले 5 सालों में, ये 2018 में जब से वो आया है क्रिप्टो करेंसी का रुझान, उस वक्त से बहुत ऊपर गया। तो इसकी अगर वो कैलकुलेट करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5 साल की, बहुत ज़्यादा, 1,000% बनती है। $17 का था, 200 का है। तो
ये एनवीडिया भी बहुत अच्छी कंपनी है, इनके जीपीयूज मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। एक ये कंपनी है जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी कोविड की वजह से, पेलेटॉन इसका नाम है। पेलेटॉन ये बनाती हैं बाइसाइकिल वगैरह, एक्सरसाइज मशीन्स, और इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड, नेटफ्लिक्स की तरह इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड वो होता है। साइकिल पे आप बैठे होते हैं, सामने टीवी लगा होता है, उस पे आप वो इंस्ट्रक्टर इन्होंने अच्छे अच्छे रखे हुए हैं, एक्टर्स वगैरह, वो आपको बताते हैं कि इस तरह साइकिलिंग करें, मोटिवेट करते हैं आपको साइकिलिंग करने के लिए। या फिर और भी काफ़ी इनकी मशीनें हैं, उन सब पे ये मोटिवेट करते हैं। पेलेटॉन अगर मैं सर्च करूं, ये मेरे ख्याल से पेलेटॉन नाम है। हाँ, ये साइकिलिंग वगैरह किधर है? हाँ, वर्कआउट स्ट्रीम लाइव ऑन डिमांड। तो ये इस तरह की मशीन होती है, इस पे सामने स्क्रीन लगी होती है, वो आपको मोटिवेट कर रहा होता है, फिर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि मैं इतना भागा हूँ या इतनी साइकिल की आज, तुम मेरा रिकॉर्ड तोड़ के दिखाओ, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं लोग। या फिर ये योगा वगैरह की क्लासेस भी होती हैं इसमें, वो बस जिम वगैरह की चीज़ें जो है ना ये लोग बनाते हैं। मगर मेरे ख्याल से पेलेटॉन कंपनी वैसे तो ये बहुत शूट किया था पहले, महीना 2 महीने पहले, काफ़ी अच्छा था ये। इधर गया था जून में तकरीबन, क्योंकि जब कोविड का पीक चल रहा था, गर्मियाँ थी, लोग बाहर नहीं निकल सकते, मगर एक्सरसाइज का दिल करता था। अब तो नीचे जा रहा है ये, काफ़ी पता था नीचे जाएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट एप्पल ने अपनी टेक्नोलॉजी निकाली है जो यही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, मगर एप्पल की डिवाइसेस में। उसका नाम उन्होंने रखा है एप्पल फिटनेस प्लस। तो उनकी वॉच भी है एप्पल की अपनी। तो वो भी इसी तरह एक्टर्स एक्ट्रेसेस हायर करते हैं ट्रेनिंग के लिए, और प्रोफेशनल्स हायर करते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, और फिर आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, ये भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। तो इसकी तो फीस बहुत ज़्यादा होती है, इसकी तो मेरे ख्याल से ये देखें, स्टार्टिंग एट 1000, 1,800 डॉलर दें आप, तो बाइक मिल जाएगी। फिर पर मंथ आपने $49 देना है वो सब्सक्रिप्शन के लिए, जो कि पूरी जिम की मेंबरशिप होती है, वो एक साइकिल के लिए आपने देनी है। तो काफ़ी हाईली प्राइस प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये एलीट क्लास के लिए हैं। मगर फिर भी इसमें आजकल मेरे ख्याल से ये अब नीचे ही जाएगा, क्योंकि एप्पल जो इस मार्केट में आ गया है, उसको तो कोई बीट नहीं कर सकता, उसके पास ऑलरेडी डिवाइसेस भी हैं। कॉलकॉम कॉलकॉम मेरी कंपनी है। कॉलकॉम चिप्स बनाती है स्मार्टफोन के। ये बहुत अच्छा ग्रोथ स्टॉक है मेरे ख्याल से, आराम आराम से मगर बढ़ता ही रहता है ये अगर देखेंगे ना, तो स्लोली स्लोली ऊपर ही जाता रहता है। किसी मुझे याद है 3-4 साल पहले शायद किसी टाइम पे 40 का भी गया था ये। हाँ, इधर $40 का भी खरीदा हुआ मैंने ये। तो वो आप देखें 133 का है। इस तरह स्लो ग्रोथ चाहिए तो ये अच्छी है, और इसमें डिविडेंड भी मिलता है साथ में, 2% है मगर बहुत कम है। वो भी एक एडेड बोनस है। रॉयल बैंक डिस्कस कर लिया। स्क्वायर मैंने बताया, ये स्क्वायर बहुत अच्छी कंपनी है, इसके टर्मिनल्स जो हैं यूज़ होते हैं, कैश टर्मिनल्स। टी टेलस टेलस कंपनी यहाँ की मोबाइल कंपनी है, जिस तरह पाकिस्तान में यूफोन, जैज, जोंग वगैरह है, इस तरह यहाँ पे टेलस है। और टेलस बड़ी नहीं है, बेल बड़ी है ज़्यादा। बेल है, रॉजर्स, ये दो बड़ी कंपनी है, टेलस छोटी कंपनी है। मगर इनके मुझे पता है कस्टमर्स जो है ना इनके ज़्यादा हैं, क्योंकि ये दूसरे सूबों में टेलस ज़्यादा चलती है। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। इसका डिविडेंड भी बड़ा अच्छा है। डिविडेंड आप देखेंगे अमूमन वो लोग देते हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन होती है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो होते हैं ना, जिनको पर मंथ अपने यूजर्स से पैसा आता है, वो पर मंथ अपने शेयर होल्डर्स को पैसे भी देते हैं फिर। तो इनको पर मंथ फीस जाती है, क्योंकि सारे पैसे मोबाइल वाले जो हैं पर मंथ इनको पैसे देते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं भी देता हूँ, टेरेस का नहीं है मेरे पास, मेरे पास तो बेल का है। मगर पर मंथ जाती है, पेमेंट कटती है, तो वो इनको पर मंथ मिलता है, तो आगे शेयर होल्डर्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। कम देते हैं मगर देते हैं फॉरवर्ड, और ग्रोथ भी है इनकी। तो टेरेस अच्छी कंपनी है। और फिर टीडी तो बात की हुई है, टोरंटो डोमिनियन बैंक है। टेस्ला
टेस्ला का आपको पता होगा, ये गाड़ियाँ बनाते हैं, ट्रकों में भी आ गए हैं, और भी काफ़ी इनकी कंपनीज हैं। मगर ये बहुत हाइप है इसमें, स्टॉक में। मैं इसमें बहुत कम पढ़ता हूँ। कभी कभी मुझे जब अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, जब लोगों की बेवकूफ़ी नज़र आती है, तब मैं पढ़ता हूँ बीच में, बाकी और कुछ नहीं इसमें हाथ डालता, क्योंकि ये बहुत इमेच्योर इन्वेस्टर्स इसमें घुसे हुए हैं। आए दिन इसका बहुत ऊपर जाता है और बहुत नीचे जाता है, फ्लक्च वॉलेटिलिटी बहुत है इसमें। तो इसलिए जब जब मुझे पता हो रहा होता है कि बहुत ज़्यादा आज कम गया है और ये टेम्परेरी न्यूज़ की वजह से गया है, तो मैं इसको ख़रीद लेता हूँ फ़ौरन के। टेम्परेरी न्यूज़ के मतलब कि बस वैसे ही आज बुरा दिन था, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों ने नीचे ले गए हैं, तो मैं इसको फ़ौरन ख़रीद लेता हूँ। मुझे पता है इसने ऊपर तो जाना ही है, लोग पागल तो हैं ही। तो तब मैं ख़रीद लेता हूँ। हालांकि इसका बहुत ग्रोथ है इधर से। 2019 में $65 का था, 700 डॉलर का है। तो ग्रोथ बहुत हुई है, मगर ये किसी वक्त भी बर्स्ट हो सकता है, बबल टाइप लगता है एकदम से। इतनी ग्रोथ जो होना है ना, वो बहुत रिस्की होता है। TSM जो है, ये भी सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। इसकी भी जो है ग्रोथ तो देखी है मैंने, आजकल स्टेबल है, इसकी डिविडेंड भी मिलता है इनका। तो ये भी सिलिकॉन मैन्युफैक्चर करते हैं। ऊपर VMware है। VMware ये वो बनाती हैं, सॉफ्टवेयर बनाती हैं जिसमें विंडोज़ में मैक चल जाता है, मैक में विंडोज़ चल जाता है। ये वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर बनाती हैं। वर्चुअल रियलिटी नहीं, वर्चुअल सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वर्चुअल मशीन। VM का मतलब वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर बनाती है। इनका वो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता रहता हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। और ये कंपनी जो है अच्छी कंपनी है, बाकी सॉफ्टवेयर भी बनाती हैं, तो इसीलिए ये इस पे खरीदता रहता हूँ। वॉलमार्ट एक मैंने मेंशन किया था पहले, ये बहुत बड़ी सुपर स्टोर है। US में भी इनके हज़ारों स्टोर्स हैं, और कनाडा में भी हज़ारों से स्टोर्स हैं इनके। तो ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, कहीं नहीं जाने वाली। ये ग्रोसरी स्टोर है, बेसिकली ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह स्टोर है। तो ये भी काफ़ी अच्छी अगर अपॉर्चुनिटी नज़र आए, बहुत कम पे है, मगर इसका स्लो स्लो ऊपर और स्लो स्लो नीचे जाता है। वॉलेटिलिटी बहुत कम है इसकी, जितनी मुझे पसंद है उससे थोड़ी कम है। दरमियानी वॉलेटिलिटी हो तो अच्छी लगती है, इतनी भी ना हो टेस्ला जितनी, या ना इतनी कम हो जितनी वॉलमार्ट या बहुत बड़ी एप्पल जितनी कंपनी। दरमियान वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है। चलिए ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई। ये सारे मेरे स्टॉक्स है जो मैं जिन पर मैं नज़र रखता हूँ। बाकी और भी हैं वॉच लिस्ट में मेरे। ये RDS है रॉयल, ये पेट्रोल की कंपनी है। ये एयरलाइन कंपनी है, कोर्सेरा बात की हुई है। टीम है अल्टेजियन कॉर्पोरेशन। मैं जो ऑफिस में यूज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर, जीरा वगैरह, कॉन्फ्लुएंस, ये वो ये लोग बनाते हैं। अल्टेजियन कॉर्पोरेशन टीम नाम है इनका। तो ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ये चिप्स बनाती हैं जो पावर वगैरह में यूज़ होती हैं। पेलेटॉन बने, जॉनसन एंड जॉनसन। आप हलाल स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे। जो सबसे ज़्यादा हलाल स्टॉक मुझे पता है सबसे बड़ा, वो जॉनसन एंड जॉनसन है। ये बेबी शैम्पू भी बनाते हैं, आपको पता होगा, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी शैम्पू होता है। और आजकल तो काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये, क्रीम वगैरह, बड़ों के लिए भी छोटों के लिए भी। अमेजोन का आपको पता है, अमेजोन तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसका भी स्टॉक आप देख सकते हैं। डैश, डोर डैश है, यहाँ पे एक ऐप चलती है जिस तरह फूड पांडा पाकिस्तान में है, और करीम भी है। इस तरह डोर डैश है, मगर ये सिर्फ फूड के लिए होता है, स्पेशल फूड है वो, उसके लिए नहीं है, टैक्सी वगैरह के लिए। टी डॉट टी ओ मेरे ख्याल से टेलस ही है। और VSP, ये बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे टोरंटो में। VSP ग्लोबल्स, ये इंजीनियर्स हायर करते हैं और आउटसोर्सिंग करते हैं। ब्लैकबेरी यहाँ की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल है। कॉस्टको, कॉस्टको बहुत बड़ी कंपनी है, वॉलमार्ट की तरह ग्रोसरी स्टोर, मगर यहाँ पे होल सेल चीज़ें मिलती हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और सस्ती मिलती हैं। ये भी ग्रोसरी बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको। वॉलमार्ट से कम यूज़ करते हैं, मगर बहुत ज़्यादा हम लोग खुद बहुत शॉपिंग करते हैं यहाँ से। AMD है, अमेरिकन एयरलाइन है। ये सारी बात होम डिपो, वॉलमार्ट, ये सारा डिस्कस किया हुआ है। एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइन कंपनी एयरलाइंस है। ये भी एयरलाइन के स्टॉक आज ऊपर गए हुए हैं, क्योंकि कोविड, दिसंबर का महीना आ रहा है, दिसंबर में ट्रैवलिंग होती है, तो उसकी वजह से। टेस्ला, एप्पल, एनवीडिया, कॉलकॉम, ये सारी मैंने आपसे डिस्कस की है। ओके।